میں ایک بانج عورت تھی، اولاد پیدا کرنے کے لیے میں کچھ بھی کر سکتی تھی۔ ایک دن میرے گھر کے نوکر نے مجھے دیکھ کر کہا کہ آپ کو بچہ ہو سکتا ہے، آپ کو بچہ چاہیے تو میرے ساتھ ایک رات ہم بستری۔ لیکن اس رات اس نے ایسی چیز سے ہم بستری کی میرے ہوش اڑ۔ کبھی کبھی انسان کے سامنے ایسی مجبوری آ جاتی ہے کہ اسے صحیح اور غلط کی پہچان نہیں رہتی۔ کچھ مجبوریوں کے ہوتے ہوئے وہ غلط کر بیٹھتا ہے، جس کے بعد پچھتانے کے علاوہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں بچتا۔ میرے پاس ہر قسم کا عیش و آرام تھا، نوکر چاکر، گاڑی بنگلہ، سب کچھ تھا۔ کہنے کا مطلب تھا کہ میرے گھر میں ہر طرح کی سہولت موجود تھی، پر دولت سب کچھ نہیں ہوتی ہے۔ مجھے ایک کمی تھی، وہ کمی دنیا کی سب سے بڑی کمی تھی۔ مجھے بس ایک اولاد کی کمی تھی، اور اولاد نہ ہونے کی وجہ سے میرا شوہر مجھے طلاق دے کر دوسری شادی کرنے والا تھا۔ اولاد کی خاطر میں کچھ بھی کر گزرنے کے لیے تیار تھی، کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار تھی۔ میرے گھر میں ایک نوکر تھا جو دیکھنے میں کافی خوبصورت اور ہٹا کٹا نوجوان تھا۔ ایک دن اس نوکر نے مجھ سے کہا کہ میم صاحبہ، آپ کو بچہ ہو سکتا ہے، پر بچے کے لیے آپ کو میری ایک بات ماننی پڑے گی۔ میں نے کہا کیا بات؟ نوکر نے کہا میم صاحبہ، بچے کے لیے آپ کو میرے ساتھ ایک رات میں صبح ہی صبح باغیچے کے اندر کرسی پر بیٹھ کے ہاتھ میں چائے کا کپ لے کر چائے پی رہی تھی۔ بہت ہی پرسکون اور خوشگوار دن تھا۔ چڑیوں کی پیاری چہچہاہٹ ہر کسی کے دل کو موم کر لیتی ہے۔ اتنی پیاری اور آرام دہ زندگی میں بھی میرے دل میں دکھ کی لہریں امڈ رہی تھی۔ میری آنکھوں سے آنسو کا سیلاب میرے اندر پھوٹ پھوٹ کر باہر آنے کو زوروں زور سے لے رہا تھا۔ آج میرے شوہر نے پھر سے مجھے وہی بات کہی تھی جس کو سننے کے بعد میری طبیعت بگڑ گئی تھی۔ میرے پاس کیا کچھ نہیں تھا، خدا کا دیا ہوا سب کچھ تو تھا۔ گاڑی بنگلہ، نوکر چاکر، ہر طرح کا عیش و آرام میرے گھر میں موجود تھا۔ میرے گھر میں چھوٹی سی لے کر بڑی تک ضرورت کے حساب سے ہر سہولت موجود تھی۔ میرا شوہر ایک بہت بڑا بزنس مین تھا، جس وجہ سے گھر میں دولت کی بھی کوئی کمی نہیں تھی۔ میرے گھر میں نوکر چاکر سے لے کر مہنگی سے مہنگی گاڑی تک موجود تھی۔ میں ایک خوبصورت حسین عورت تھی۔ میری شادی کو 4 سال ہو گئے تھے، لیکن خدا نے ابھی تک اپنی مہربانی مجھ پر نہیں دکھائی تھی۔ میری ممتا بچوں کے لیے ترستی رہتی تھی۔ میں نے ہر طرح کا علاج کروا لیا تھا، لیکن مجھے پھر بھی خوشی نہیں ملی تھی۔ مجھے ایک ایسی بیماری تھی کہ حاملہ ہوتی تو 3 مہینوں کے بعد میرا بچہ گر جاتا تھا۔ میرے شوہر نے ہر ڈاکٹر، ہر حکیم سے ہر طرح کا علاج کروا لیا تھا۔ کوئی بھی ایسی دوا دارو نہیں چھوڑی، اور نہ ہی کوئی ایسا دیسی نسخہ چھوڑا تھا جو میں نے آزمایا نہیں تھا۔ لیکن میرے ساتھ یہی سلسلہ جاری رہتا تھا۔ میں بچوں کے بارے میں دن رات سوچتی رہتی تھی، اور اکثر زیادہ تر ان خیالوں میں کھوئی رہتی تھی۔ میں بھی اب ایک بچہ چاہتی تھی۔ میں انہیں سب خیالوں میں گم تھی کہ کبھی شیشے کی تیز چمکنے نے ہڑبڑنے پر مجبور کر دیا تھا۔ میں نے سامنے دیکھا تو وہ ہمارا نیا نوکر تھا، شیشے کے گملے صاف کر وہ نوکر کچھ عجیب نظروں سے مجھے ہی دیکھے جا رہا تھا، جیسے کہ اس نے پہلے کبھی عورت دیکھی نہ ہو۔ اور جیسے ہی میری نظر اس پر پڑی تو وہ ہڑبڑا سا گیا تھا، فوراً سے نظریں جھکا کر پھر سے وہی گملہ صاف کرنے میں مصروف ہو گیا۔ اب ایک دن پہلے پرانا نوکر کام چھوڑ کر چلا گیا تھا، تو میرے شوہر نے نیا نوکر کام پر رکھا تھا۔ یہ نوکر 25 سال کا ہٹا کٹا خوبصورت نوجوان تھا۔
وہ ہمارے گھر کے چھوٹے موٹے کام اور میری گاڑی ڈرائیو ہی کرتا تھا۔ مجھے کہیں بھی جانا آنا ہوتا تھا تو میں اسی کے ساتھ جاتی تھی، یا پھر آپ یوں سمجھ لو کہ میرے شوہر نے اسے میرے ان کاموں کے لیے رکھا تھا جو کام وہ نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے جہاں بھی جانا ہوتا میں اسی نوجوان کے ساتھ جاتی۔ میں نے محسوس کیا تھا کہ جب میں گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھ کر کہیں اس کے ساتھ جاتی تھی تو وہ شخص بہانے بہانے سے مجھے شیشے میں سے گھورتا رہتا تھا۔ جب میں اسے دیکھتی تو فوراً سے وہ نوکر نظریں بدل لیتا تھا۔ اس نوکر کے دل میں نہ جانے مجھے لے کر کون سی خواہش تھی۔ خیر، میرا بچہ گرنے کی بیماری کی وجہ سے میرا شوہر بھی مجھ سے تنگ آنے لگ گیا تھا۔ شوہر کیا، مجھ سے تو پوری دنیا ہی تنگ آ چکی تھی۔ میں کسی بھی محفل میں جاتی تو عورتیں مجھ سے دور دور ہونے لگتی تھی، جیسے میں کوئی اچھوت ہوں۔ خاص طور پر حاملہ عورتیں تو مجھے یوں دیکھتی تھی جیسے کہ میں کوئی ڈائن ہوں۔ میرا سایہ بھی اگر ان پر پڑ گیا تو ان کا بچہ مر جائے گا۔ میں جانتی تھی مجھے محفلوں میں لوگ شاید اس لیے برداشت کرتے تھے کہ میرا شوہر ایک بہت بڑا بزنس مین تھا اور اس کے تعلقات کی وجہ سے سب لوگ مجھے برداشت کرنے پر مجبور تھے۔ رات کو بھی میں ایک پارٹی میں گئی ہوئی تھی، لیکن بہت سی عورتیں مجھ سے ٹھیک سے بات نہیں کر رہی تھی، کیونکہ سبھی جانتی تھی کہ جب بھی میں حاملہ ہوتی تھی تو 3 مہینے بعد ہی میرا بچہ گر جاتا تھا۔ ایک عورت کے لیے یہ بہت بڑی تکلیف دہ مرحلہ ہے۔ 3 مہینے تک وہ اپنے پیٹ میں اپنی اولاد کو محسوس کر کے اسے پالتی رہی، اور پھر 3 مہینے بعد اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی اس کا بچہ پیٹ میں ہی مر جائے۔ یہ میرے لیے کتنی دکھ کی بات تھی۔ خیر، میں نے اپنے آنسو پونچھے اور ہاتھ میں پکڑا ہوا چائے کا خالی کپ ٹیبل پر رکھ دیا۔ گھر میں کرنے کے لیے میرے پاس کوئی کام نہیں ہوتا تھا۔ گھر کے سارے کام تو نوکر کیا کرتے تھے، اس لیے میں ہر وقت انہی خیالوں میں کھوئی رہتی تھی۔ رات کو جب فاروق گھر آتے تو میرا بجھا ہوا چہرہ دیکھ کر اس کے ماتھے پر عجیب سی سلوٹیں پڑ جاتی تھی۔ فاروق میرے پاپا کے ساتھ کام کیا کرتا تھا۔ میں نے اسے اپنے پاپا کے آفس میں ہی دیکھا تھا، اور پھر میرے پاپا نے فاروق کو خود ہی میرے لیے پسند کیا تھا اور اسے میرے ساتھ شادی کرنے کے لیے کہا تھا۔ فاروق کو مجھ سے شادی کرنے پر کوئی اعتراض نہیں ہوا تھا۔ ہم دونوں کی شادی کو 4 سال کا وقت گزر گیا تھا اور ان 4 سالوں میں 3 بار حاملہ ہوئی تھی، لیکن ہر بار ہی میرا بچہ میرے پیٹ میں ہی مر جاتا تھا۔ فاروق نے میرا علاج کروانے کے لیے کوئی بھی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ سارے حکیم، بڑے سے بڑے ڈاکٹر، فاروق نے ان سب کو مجھے دکھایا تھا، یہاں تک کہ مجھے باہر کے ملکوں کے ڈاکٹر کو بھی دکھایا تھا۔ میں نے بھی بچے کی خاطر اپنی طرف سے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ میں نے ہر مسجد دربار میں ماتھا ٹیکا تھا۔ بچے کی خاطر میں نے نہ جانے کتنے مزاروں پر دھگے باندھے تھے، لیکن پھر بھی میری گود سونی کی سونی ہی تھی۔ میری بیماری ایسی بیماری تھی جو ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ اب تو ہر وقت فاروق بھی مجھے طعنے دینے لگا تھا اور کہتا رہتا تھا 4 سال ہو گئے ہیں لیکن ابھی تک تم مجھے ایک بچہ نہیں دے سکی۔ میں تم سے اب تھک چکا ہوں۔ اتنی ساری جائیداد ہے میرے پاس، لیکن اس جائیداد کا کوئی بھی وارث نہیں ہے اور نہ ہی مجھے تم سے آگے کوئی امید دکھ رہی ہے۔ میں کیا کروں اتنے پیسوں کا؟ اگر میں مر گیا تو میرا سب کچھ دوسرے ہی کھائیں گے، میری ساری جائیداد ان کے حوالے ہو جائے گی۔ آج بھی میں گمسم بیٹھی اس کی باتیں چپ چاپ ہی سن رہی تھی اور دل ہی دل میں رو رہی تھی، کیونکہ رونے کے سوا اور میں کر بھی کیا سکتی تھی۔ فاروق کو تو میں کچھ کہہ بھی نہیں سکتی تھی اور وہ پچھلے 2 سال سے مجھے ایسے ہی سناتے آ رہے تھے۔
लेकिन मैं बिल्कुल खामोश रहती थी क्योंकि मैं जानती थी कुछ ना कुछ कमी मेरे अंदर ही थी और मैं फारूक की बातों का मतलब अच्छी तरह से जानती भी थी और जो फारूक चाहता था मैं इसकी इजाज़त से इसे किसी भी कीमत पर नहीं दे सकती थी। वो 2 साल से मुझे दबे दबे लफ्ज़ों से कह रहा था, लेकिन आज तो इसने मुझे साफ साफ कह दिया था। फारूक ने मुझसे कहा था, रमशा मुझे एक बच्चा चाहिए और वो बच्चा तुम मुझे नहीं दे सकती हो, इसलिए मैं दूसरी शादी करना चाहता हूँ। फारूक की ये बात सुनकर मेरे सर पर आसमान फट गया था, मेरे पैरों तले से जमीन ही निकल गई थी। मैं रोने लगी थी क्योंकि मुझे मेरी दुनिया उजड़ती हुई दिखाई दे रही थी। मैंने फारूक का हाथ पकड़ लिया। मैंने फारूक से कहा, तुम क्या कर रहे हो? तुम दूसरी शादी करना चाहते हो? मैं तुम्हें ये सब किसी भी कीमत पर नहीं करने दूंगी। फारूक ने मुझसे कहा, रमशा और मैं कर भी क्या सकता हूँ? मुझे वारिस चाहिए जो तुम मुझे नहीं दे सकती हो, इसलिए मैं दूसरी शादी करना चाहता हूँ और मुझे ऐसा करने से कोई भी नहीं रोक सकता है। फारूक ये सब बातें मुझे बहुत ही संजीदा तरीके से कर रहे थे। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे और मैं टूटे हुए दिल के साथ फारूक की तरफ देखते हुए इससे कहने लगी, फारूक प्लीज तुम ऐसा मत करो। तुम क्या समझते हो औलाद ना होने का गम बस तुम्हें ही है, मुझे नहीं है? क्या मैं भी औलाद के लिए तड़पती हूँ? मैं अपनी औलाद को खो देने के बाद किसी तकलीफ से गुजरती हूँ। तुम्हें क्या पता औलाद को मरने के बाद मैं इस कदर फूट फूट कर रोती हूँ और अब लोगों के ताने सुन सुन कर मेरे कान पक गए हैं। बच्चा ना होने की वजह से सब लोग मुझसे कतराते हैं, कोई मेरे पास तक भी नहीं आता। सब लोग मुझे अछूत की नज़रों से देखते हैं। मुझे ये तुमसे उम्मीद थी कि तुम तो मेरे इस बुरे वक्त में मेरा साथ दोगे, लेकिन तुम तो मुझ पर एक और जुल्म करने के लिए कह रहे हो। मेरे घर में मेरी सौतन लाना चाहते हो। फारूक को मुझसे बहुत मोहब्बत थी। शायद यही वजह थी कि पिछले 4 सालों से वो मुझे ये बात कहते हुए कतरा रहा था, लेकिन वो था तो एक आदमी ही, ना वो कुछ भी कर सकता था। मैं अपने घर में किसी दूसरी औरत को बर्दाश्त नहीं कर सकती थी और ना अपने शोहर को किसी दूसरी औरत के साथ बांट सकती थी। मुझे बस इसी बात का डर था जो आज फारूक ने मुझसे कह दिया था। फारूक मुझसे कहने लगा कि तुम औरतों के पास ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि तुम औरतें ज़रा सी बात पर रोकर अपने दिल का बोझ हल्का कर लेती हो। लेकिन बताओ क्या मैं क्या करूं? मुझे औलाद चाहिए और वो भी हर हाल में। अगर मैंने और साल बर्बाद कर दिए तो और मुश्किल हो जाएगी। मैंने कहा, फारूक तुमने जैसे जैसे चाहा वैसे वैसे तुम मेरा इलाज करवाते आ रहे हो और अभी भी तुम जो चाहो वो मेरे साथ कर सकते हो। मैं उफ तक नहीं करूंगी और ना ही कभी मैंने तुम्हें इनकार किया है और आगे भी तुम जैसा कहो वैसा करने के लिए मैं तैयार हूँ। लेकिन अल्लाह के वास्ते तुम दूसरी शादी की बात मत करो। दूसरी औरत को इस घर में और तुम्हारी ज़िंदगी में किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं कर सकूंगी। प्लीज़ तुम मुझे इस तकलीफ़ में मत डालो। इस बार उन्होंने अपना हाथ मेरे दोनों हाथों से खींचा और उठकर बाहर चली गई। मैं पूरी रात रोती रही। सुबह मेरी आंखें बहुत ज़्यादा सूजी हुई थी। फारूक मेरे उठने से पहले ही ऑफिस जा चुका था। मैं कमरे से बाहर आई तो नौकरानी ने मुझे नाश्ते के लिए पूछने लगी। मैंने कहा, मुझे कुछ नहीं खाना है, बस एक कप चाय पिला दो। मैं हाल के सोफे पर बैठ गई थी जहां पर वो नौकर शीशे की मेज और गमलों के कपड़े से साफ कर रहा था और मेरी आंखें देखकर कहने लगा, मैम साहिबा आपको क्या हुआ है? कोई परेशानी है क्या आपको? आपकी आंखें क्यों सूजी हुई हैं? क्यों हर वक्त इतना उदास रहती हो? मैंने अजीब अंदाज से इस नौकर को देखा था। मैंने इस नौकर से कहा कि तुम नौकर हो और नौकर की हैसियत में रहा करो, फालतू में मुंह लगने की कोशिश मत किया करो, चुपचाप अपने काम से काम रखो। मैं कैसी हूँ कैसी नहीं
तुम्हें पूछने की जरूरत नहीं है। मेरी परेशानी में दिलचस्पी लेने की तुम कोशिश भी ना करो, तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। मेरी बातें सुनकर इसने अपने कंधे उचका लिए थे और गहरी सांस लेते हुए दोबारा सा गमला साफ करने लग गया था। नौकर ने मेरे सामने चाय रख दी और चली गई थी। मैंने चाय का कप पकड़ा और पीने लग गई। तब ही वो नौकर दोबारा मुझसे कहने लगा, मैम साहिबा ये आपकी मर्जी है, मैंने तो आपसे इंसानियत के नाते ये सब कुछ पूछा था। अगर आप किसी को अपना गम बता दोगी तो आप छोटी थोड़ी हो जाओगी। मैम साहिबा गम बांटने से गम घटता है और खुशियां बांटने से बढ़ती हैं। किसी दूसरे को अपना गम बताने से हो सकता है कि सामने वाले के पास आपकी परेशानी का हल हो सकता है, आपकी परेशानी हल हो जाए। इस नौकर की बातों ने मुझे चौंका कर रख दिया था। मुझे हैरत इस बात की हुई थी कि वो कैसे जानता था कि मुझे क्या परेशानी है। इसे तो अभी आए हुए बस 1 महीना भी नहीं हुआ था। फिर मेरे दिमाग में आया कि घर में इतने सारे नौकर नौकरानियां हैं, किसी ने भी इसे भी इस बात का बता दिया होगा। दूसरा ख्याल मेरे दिमाग में ये आया था कि हो सकता है ये किसी पीर फकीर को ही जानता हो जो मेरे इस परेशानी को हल कर दे। मैंने इस नौकर से कहा, तुम इधर मेरे पास आओ, जरा बात सुनो। मेरा ये कहना था कि वो शायद वो पहले से ही इस बात के इंतजार में तैयार था। फौरन से सफाई वाला कपड़ा इसने एक तरफ रखा और मेरे पास जमीन पर आकर बैठ गया। मैंने कहा, तुम्हें कैसे पता कि मुझे क्या परेशानी है और मैं क्यों उदास और परेशान रहती हूँ? मेरी बात सुनकर वो कहने लगा, पता तो चल ही जाता है, मुझे बड़ा दुख होता है आपके बारे में। मैं ये सुनकर मुझे ये बात आपकी नौकरानी ने बताई थी। मैंने कहा, तुम्हारे पास इस परेशानी का क्या कोई हल है? मेरी इस बात पर इसकी नजरें झुकी हुई थी। वो कहने लगा, परेशानी का हल तो है, लेकिन छोड़ो, आप ये काम नहीं कर सकती हो। मैंने कहा, ऐसा भी क्या काम है जो मैं नहीं कर सकती हूँ? तुम मुझे बताओ तो सही। मेरी बात सुनकर वो उठकर खड़ा हो गया था और कहने लगा, मैम साहिबा मुझे पता है आप किसी भी हालत में वो काम नहीं कर सकती हो। ये कहकर मेरा नौकर वहां से चला गया था और मैं इसे हैरत से जाते हुए देखती ही रह गई थी। और अब मैं ये सोच कर परेशान होने लगी थी, भला ऐसे भी क्या काम था जो मैं नहीं कर सकती थी, जबकि औलाद पाने के लिए मैं कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार थी, किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार थी। औलाद की खातिर मैंने मुश्किल से मुश्किल इलाज करवाए थे, डॉक्टर के पास पैसा पानी की तरह बहाया था, हकीम पीर फकीर किसी को भी नहीं छोड़ा था। हालांकि मैं पढ़ी लिखी औरत थी, लेकिन फिर भी मैंने पीर फकीरों पर यकीन किया था। मुझे जिसने जैसा कहा मैं वैसा ही मान लेती और फिर मैं वो सब करती थी, लेकिन कुछ नहीं होता था। इंसान उम्मीद पर ही जिंदा होता है। जब इंसान को कोई आस नजर आती है तो फिर इसे एक उम्मीद भी मिल जाती है और वो इस उम्मीद के सहारे यही सोचने लगता है कि शायद अब हमारी परेशानी दूर हो जाएगी। मुझे भी एक नई उम्मीद मिल गई थी जो इस नौकर से थी। मैं सोच चुकी थी कि वो नौकर मुझे जिस इलाज के बारे में बताना चाहता है मैं वो जरूर करूंगी। मेरी परेशानी ये थी कि फारूक मुझे दूसरी शादी करने के लिए खुद ही कह चुके थे। अगर उन्होंने दूसरी शादी कर ली तो मेरा क्या होगा? मैं तो कहीं की नहीं रहूंगी। अब तो मुझे हर कीमत पर औलाद चाहिए थी, चाहे मुझे कोई भी रास्ता अपनाना पड़े। मैं अपने शोहर को नहीं छोड़ सकती थी और ना ही किसी दूसरी औरत के साथ फारूक को बर्दाश्त कर सकती थी। अगले दिन में जब शॉपिंग के लिए घर से निकली तो इसी नौजवान नौकर के साथ बाहर गई थी। गाड़ी में बैठते ही इधर उधर की बातें करने के बाद मैंने इससे कहा कि वो मुझे बताए कि वो क्या इलाज है जिससे मुझे बच्चा हो सकता है। मैं हर हाल में वो इलाज करवाना चाहती हूँ। मैंने इसे इस बात पर जोर देकर कहा था कि बच्चे के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, किसी भी हद तक जा सकती हूँ। तभी वो नौकर कहने लगा, मैम साहिबा मैंने आपसे कहा तो है, ये सब आपके बस से बाहर है। औरत हर काम कर सकती है पर ये काम नहीं कर सकती है। मैंने
मैंने कहा क्या जो इलाज तुम बता रहे हो इसे 100% मुझे औलाद हो सकती है? वो कहने लगा हाँ बिल्कुल मैम साहिबा हो सकती है, और इस बात तो मैं शर्त भी लगा सकता हूँ। जितने भरोसे से वो मुझसे बातें कर रहा था मेरा दिल इसकी बातों पर यकीन करने के लिए मजबूर हो गया। मैंने कहा क्या कोई बाबा है जो इस चीज का इलाज करता है, या कोई डॉक्टर या फिर कोई हकीम जो मेरी परेशानी को दूर कर सकता है? मेरी बात पर वो हंसने लगा, मुझसे कहने लगा नहीं इन तीनों में से कोई भी नहीं है। इन तीनों के पास तो आप कई बार जा चुकी हैं और हर बार आप खाली लौट कर आई हो। मैं हैरान हुई थी कि ऐसा ही इलाज को सिर्फ यही 3 किस्म के लोग करते हैं। वो मुझे किस बारे में कह रहा था? मैंने बार बार इससे एक ही बात पूछी कि वो आखिर ऐसा कैसा इलाज है, मुझे बताओ तो सही, लेकिन हर बार वो मेरी बात टाल जाता था। इतनी भी मैं इसे जिद करती पूछने के लिए, इलाज के बारे में जानने के लिए कि आखिर ऐसा कौन सा इलाज था जो मेरी इस बीमारी को ख़त्म कर सकता था। ना ही वो आदमी मुझे बताने को तैयार ना था। अब तो मैं दिन रात बस एक ही बात सोचती रहती थी कि मुझे वो किस तरह से इस इलाज के बारे में बताए ताकि मेरा घर टूटने से बच जाए। आजकल मैंने देखा था कि फारूक मुझसे बिल्कुल भी बात नहीं करते थे। ऑफिस से घर आते ही लैपटॉप लेकर बैठ जाते और इसके बाद मोबाइल पर अपने दोस्तों से बात करते रहते थे। अगर मैं इससे कोई बात करती तो वो मुंह बनाते हुए कमरे से बाहर निकल जाते थे। लेकिन इसके बाद जो मैंने देखा मेरे पैरों के नीचे से जमीन ही निकल गई थी। आज भी मैं इस नौकर के साथ एक शॉपिंग मॉल पर गई हुई थी जहां मैंने फारूक को एक खूबसूरत लड़की के साथ बैठे हुए देखा था। शायद वो इस लड़की को शॉपिंग करवा रहे थे। इसे देखकर तो मेरे जैसे होश ही उड़ गए थे। वो फारूक की सेक्रेटरी रह चुकी थी। वो नौकर भी मेरे साथ था और वो मेरे चेहरे की उड़ी हुई रंगत को देख रहा था। फारूक और वो लड़की कुछ कदम के फासले पे मेरे सामने एक शॉप के अंदर खड़े हंस रहे थे और बातें कर रहे थे। वो लड़की अपने लिए कपड़े पसंद कर रही थी और फारूक से पूछ रही थी कि वो कौन से कपड़े ले। ये सब देखकर मेरे सर पर आसमान गिर चुका था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे जिस्म के अंदर मेरी जान ही ना हो। मेरा शौहर किसी दूसरी लड़की के साथ था। मैं इससे बेइंतहा मोहब्बत करती थी। इसी वजह से मैं फारूक के साथ किसी दूसरी लड़की को बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। मुझे याद है जब मेरी शादी हुई थी तो शादी से पहले फारूक की यही पर्सनल सेक्रेटरी थी, लेकिन मैंने आते ही इस लड़की की छुट्टी करवा दी थी। फारूक तुम अपनी सेक्रेटरी से किसी भी तरीके से कोई भी मेल जोल ना रखो। मैं तुम्हारे साथ किसी भी फीमेल को बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। इस वक्त तो फारूक ने मेरी बात मान ली थी, लेकिन इस वक्त इसी को अपने शौहर के साथ देखकर मेरे होश उड़ गए थे। दिल में न जाने कैसे ख्याल उठने लगे थे। मैंने अपना शॉपिंग बैग वहीं फेंका और तेज कदमों से चलती हुई फारूक और इस लड़की के सामने खड़ी हो गई। मुझे अपने सामने देखकर वो दोनों घबरा गए थे। मैंने कहा फारूक ये कौन है? मेरा लहजा बहुत ही ज्यादा सख्त था और चेहरा गुस्से से लाल पीला हो रहा था। फारूक ने कहा अभी तुम घर जाओ, मैं घर आकर इस बारे में तुमसे बात करूंगा। मैंने फारूक से कहा नहीं मुझे अभी बताओ ये कौन है, तुम्हारा इसके साथ क्या ताल्लुक है? तुम मेरे होते हुए कैसे किसी गैर लड़की के साथ बाजारों में घूम सकते हो? तुम मेरे शौहर हो और मेरे लिए तुम्हारे पास वक्त ही नहीं होता। जब भी मैं तुम्हें अपने साथ शॉपिंग के लिए कहती हूँ तो तुम मुझे मना कर देते हो और कहते हो कि तुम बिजी हो और इस लड़की के साथ घूमने फिरने के लिए तुम्हारे पास वक्त है। मेरा गुस्सा 7वें आसमान पर था। मेरा लहजा भी और ज्यादा सख्त होने लगा था। बहुत से आते जाते लोग मुझे और फारूक को देख रहे थे। फारूक ने जब चारों तरफ लोगों को देखा वो मुझे गुस्से से घूरते हुए कहने लगे रमशा बाजार में तमाशा मत लगाओ और घर जाओ। मैंने कहा क्यों मैं घर जाऊं? ये कौन है तुम्हारे साथ? तुम इसे नौकरी से निकाल चुके थे ना? इस लड़की को मैंने गुस्से से कहा निकलो तुम यहाँ से, और अगर दोबारा तुम फारूक के साथ नजर आई
तो मैं तुम्हारा गला दबा कर तुम्हें जान से मार डालूंगी। मुझे ना तो अपने गुस्से की परवाह थी और ना इस बात का पता था कि मैं इस वक्त कौन सी जगह पर खड़ी थी जहां लोग देख रहे हैं। मुझे तो बस वो लड़की फारूक के साथ खड़ी हुई बर्दाश्त नहीं हो रही थी। मेरी बात सुनकर वो लड़की फौरन से वहां से चली गई थी। इसके बाद फारूक ने मुझे बाजू से पकड़ा और मुझे मॉल से बाहर खींचता हुआ ले आया। वो नौजवान लड़का भी हमारे पीछे पीछे आने लगा। फारूक ने मुझे गाड़ी का पिछला दरवाजा खोलकर अंदर की तरफ बहुत ही जोर से धकेल दिया था और खुद ही मेरे बराबर में बैठ गया और इस लड़के से कहने लगा, गाड़ी चलाओ। वो चुपचाप गाड़ी चलाने लगा। मैं रोने लगी। मैंने कहा, फारूक, मैं तुम्हें किसी भी कीमत पर दूसरी शादी नहीं करने दूंगी। फारूक मुझे जहर भरी नजरों से देख रहा था और गुस्से से कहने लगा, तुमने पहले ही मेरा शॉपिंग मॉल पर बहुत तमाशा बना दिया है। गाड़ी में चुपचाप बैठी रहो वरना ये ना हो कि मेरा तुम पर हाथ उठ जाए। फारूक का ये कहना था कि गाड़ी को एकदम ब्रेक लगी थी। झटके से गाड़ी रुकने की वजह से मैं और फारूक आगे की तरफ हो गए थे। फारूक इस लड़के से कहने लगा, क्या तुम पागल हो गए हो? तुमने यूं अचानक गाड़ी क्यों रोकी है? वो पीछे रुक कर देखने लगा और कहने लगा, साहब जी, औरत से ऐसी बातें नहीं करते। मैम साहब परेशान है, आप इन्हें आराम से भी समझा सकते हैं। मैं ये नहीं समझा पा रही थी कि इसने फारूक से ऐसा क्यों कहा था। ये मेरा और फारूक का मामला था। वो होता कौन था हमारे बीच में बोलने वाला? यही हाल फारूक का भी था। फारूक पहले से ही मुझ पर गुस्सा था और इस नौकर के कहने पर फारूक का पारा और बढ़ गया था। फारूक आंखें लाल करते हुए नौकर से कहने लगा, तुम अपनी औकात मत भूलो। तुम एक घर के नौकर हो और अब मामूली नौकर मुझे सिखाएगा कि मुझे अपनी बीवी से कैसी बात करनी है। अपने काम से काम रखो और चुपचाप गाड़ी चलाओ। वो लड़का भी काफी गुस्से में था। इसने इस बार बड़ी तेज स्पीड में गाड़ी चलाई थी। जैसे ही हम बंगले के अंदर दाखिल हुए, आखिर तुम मुझे कमरे में लेकर चले गए और कमरे में जाते ही कहने लगा, आखिर तुम चाहते क्या हो? अगर तुमने ऐसे ही तमाशे लगाए रखे तो मैं सचमुच शादी करके इसी लड़की को यहाँ ले आऊंगा। मैंने कहा कि मत भूलो कि जिस जायदाद पर तुम इतना आकड़ रहे हो वो सब मेरी है। ये बिजनेस मेरा है, ये बंगला भी मेरा है। आज तक मैंने फारूक से ये बात नहीं जताई थी, लेकिन अब जता रही थी। मैंने कहा, तुम शायद भूल चुके हो कि तुम मेरे पापा के साथ काम करते थे। मेरे मुंह से ये बात सुनकर वो कहने लगा कि बड़ा गुरूर है ना तुम्हें अपने पैसे पर, इस घर पर। वो मेरे पास आया और चिल्लाकर कहने लगा, तुमने मुझे दिया ही क्या है? एक औलाद तक तुम मुझे दे ना सके। तुम्हें अपने पैसे पर इतना गुरूर है तो ठीक है, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। ये सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि फारूक मुझे ये सब कहा था। मैं फारूक से कोई भी उम्मीद कर सकती थी, लेकिन तलाक की तो मैंने कभी भी हरगिज उम्मीद नहीं की थी। एक ही मिनट में इसने मुझे तलाक दे दी और फिर सारी धन दौलत को अपने पैरों से कुचलता हुआ जाने लगा। फारूक जाते जाते मुझसे कहने लगा, संभालो अपना घर, अपना कारोबार। मैं भी देखता हूँ तुम कैसे सब कुछ संभालती हो। मुझे पैसों की कमी नहीं है, मैं बहुत पैसा बना चुका हूँ। ये कहकर फारूक घर से निकल गया था और मैं यूं खड़ी थी जैसे मैं कोई पत्थर की मूरत हूँ। मुझे फारूक से इस तलाक का सदमा बर्दाश्त ही नहीं हुआ था, जिसकी वजह से मैं चकरा खाकर वहीं सर के बल बेहोश होकर गिर गई थी। जब मुझे होश आया तो मैं अपने बेड पर लेटी हुई थी और डॉक्टर मुझे चेक कर रही थी। इस नौकर समेत मेरे सारे नौकर चाकर मेरे कमरे में थे। नौकर ने मुझे होश में देखा तो पूछने लगा, आपको क्या हुआ था? मैं इसे क्या बताती कि मैंने आज क्या खो दिया है।
میں نے इस नौकर को कोई जवाब नहीं दिया था। डॉक्टर इसको दवाई की पर्ची देकर कहने लगा, ये दवाई मंगा लो, आप ठीक हो जाएंगी। डॉक्टर घर से जा चुका था। इस लड़के ने घर की नौकरानी से कहा कि मैडम के लिए फ्रेश जूस लेकर आओ। वो नौकरानी अभी कमरे से बाहर निकल गई। वो लड़का चलता हुआ मेरे पास आ गया और कहने लगा, मुझे पता है आप बहुत बड़े सदमे से गुजर रही हो। ये बात सुनकर मैंने हैरत की तरफ देखा था। वो कैसे जानता था? क्योंकि जो बातें मुझसे कही थी वो एक बंद कमरे में कही थी। मैंने कहा कि तुम ये सब कैसे जानते हो? मेरा लहजा बिल्कुल टूटा हुआ सा था। वो कहने लगा कि मुझे आपकी फिक्र थी, इसलिए मैं आपके कमरे के पास खड़ा हो गया था, क्योंकि साहब जी बहुत गुस्से में थे। मुझे डर था कि साहब जी कहीं आप पर हाथ ना उठाएं, इसलिए मैं आपके बीच होने वाली बातों को मैं सुन रहा था। मैं रोने लगी। मैंने कहा कि अगर मेरी औलाद होती तो फारूक मुझे कभी नहीं छोड़ता। वो कहने लगा कि अगर आप इलाज करवाएं तो आपकी औलाद हो सकती है। मैंने कहा कि अब मैं क्या करूंगी, कैसे इलाज करवाऊंगी और किसके लिए? फारूक ने तो मुझे तलाक दे दी है। वो कहने लगा कि आप मुझसे शादी कर लो, आपको और आपके हर सवाल का जवाब मिल जाएगा और औलाद भी हो जाएगी। इसकी बात सुनकर मैं सोच में पड़ गई थी कि पहले जब मैंने इसे इलाज के लिए कहा था तब तो ये इनकार करता रहा, और अब जैसे ही फारूक ने मुझे तलाक दी तो वो कहने लगा कि अगर मैं इससे शादी कर लूं तो मुझे औलाद भी हो जाएगी। मेरा सर इसकी बातें सुनकर चकराने लगा था। मैंने अभी इसे कमरे से बाहर भेज दिया था, लेकिन पूरा वक्त मैंने यही सोचकर गुजार दिया था कि एक बार इसकी बात मान लेने में कोई हर्ज नहीं है। गुस्से में आकर फारूक ने मुझे तलाक दी है। अगर मैं इस लड़के के साथ शादी कर लूं और मुझे सच में औलाद हो जाए तो मैं इसे तलाक ले लूंगी और दोबारा फारूक से शादी कर लूंगी। वो भी मुझे अपना लेगा, क्योंकि इन्हें मुझसे औलाद ही तो चाहिए थी जो मुझे इस लड़के से मिल जाएगी। अगले दिन फिर मैंने इस नौकर को कहा कि मुझे इससे शादी करने में कोई एतराज नहीं है। ये सुनकर वो खुश हो गया। फिर अपनी इद्दत पूरी करने के बाद मेरी शादी इस नौकर से हो गई थी जिसका नाम वकास था, और आज पहली बार मैंने इसका नाम जाना था। मैं बहुत ज़्यादा तैयार नहीं हुई थी, क्योंकि ये मेरी कोई दिली ख्वाहिश तो नहीं थी, एक मजबूरी की शादी थी। रात को वो मेरे कमरे में आया तो मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा, मोहब्बत से नहीं बल्कि डर से। एक औरत के लिए शायद यही बहुत मुश्किल वक्त होता है, अपनी जिंदगी में किसी दूसरे आदमी को शामिल करना। मैं भी ऐसी ही परेशानी से गुजर रही थी। वो मेरे पास आकर मेरे पलंग पर बैठ गया। इसने आहिस्ता आहिस्ता मेरा घूंघट उठाया और मुझे बाहों में भरते हुए कहने लगा, मैं तुमसे अपनी बीवी होने का हक ले सकता हूँ। मैं खामोश थी और मैं खामोश ही रही। आहिस्ता आहिस्ता इसने अपनी सारी हदें पार कर दी और मुझसे अपना हक वसूल कर लिया। हैरत मुझे इस वक्त हुई जब 1 महीने बाद ही मैं हामला हो गई थी, लेकिन फिर मुझे वही डर लग रहा था कहीं 3 महीने बाद फिर से मेरा बच्चा, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ था। मैंने एक बेटी को जन्म दिया था। मैं बहुत खुश थी, लेकिन फिर वही सवाल मेरे दिमाग में चलने लगा था कि आखिर इसने ऐसा मेरे साथ क्या किया था कि मैंने एक जिंदा बच्ची को जन्म दिया था। मैंने इससे जब इस बात का जिक्र किया तो वो मुस्कुरा कर कहने लगा, आपको औलाद चाहिए थी ना, वो मिल गई है, क्यों परेशान हो रही हो? फिर मैंने कहा कि ऐसा करो, मुझे तलाक दे दो, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। ये बात सुनकर इसने बड़े गुस्से से कहा था। मैंने कहा, मैं फारूक से मोहब्बत करती हूँ, मैंने तुमसे सिर्फ औलाद के लिए शादी की थी। मैं देखना चाहती थी कि वाकई तुमसे शादी करने से मुझे औलाद हो जाएगी, मैं माँ बन सकती हूँ या नहीं। बस यही देखने के लिए मैंने तुमसे शादी की थी और मैं माँ बन गई हूँ, इसलिए मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती हूँ।
وہ کہنے لگا جس دھوکے باز کے ساتھ آپ طلاق مانگ رہی ہیں وہ خود ہی آپ سے اولاد نہیں چاہتا تھا۔ 3 مہینے بعد وہ آپ کو ایک ایسی میڈیسن دیتا تھا جس سے آپ کا بچہ ضائع ہو جاتا تھا۔ یہ سن کر میں حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ میں نے کہا تم جھوٹ بول رہے ہو؟ تو وہ مجھے کہنے لگا میں سچ کہہ رہا ہوں، آپ کے شوہر نے آپ سے صرف پیسوں کی لالچ میں شادی کی تھی۔ وہ ایک کامیاب بزنس مین بننا چاہتا تھا اور وہ بن گیا ہے۔ وہ آپ سے کوئی محبت نہیں کرتا تھا، وہ محبت اس لڑکی سے کرتا تھا جس کو آپ نے مال میں اس کے ساتھ دیکھا تھا۔ آپ کے شوہر نے صرف آپ کے پیسوں کا استعمال کیا ہے اور اس نے آپ کے پیسوں سے ٹھیک ٹھاک رقم اکٹھی کر لی ہے۔ آپ سے نہ کوئی اولاد چاہیے تھی اور نہ ہی آپ کا ساتھ چاہیے تھا۔ یہ کہہ کر اس نے مجھے فون تھما دیا تھا جس میں ایک ویڈیو تھی جس میں فاروق فون پر اس لڑکی سے باتیں کر رہا تھا۔ فاروق اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا تھا اور اس نے اب اتنی دولت جمع کر لی تھی کہ اسے نہ تو اب میری ضرورت تھی اور نہ ہی میرے کسی احسان کی۔ وقاص کہنے لگا یہ سب باتیں میں اس وقت سن چکا تھا جب میں نے یہاں نوکری شروع کی تھی، اس لیے مجھے آپ سے ہمدردی ہونے لگی تھی۔ کب یہ ہمدردی پیار میں بدل گئی مجھے پتہ ہی نہیں۔ آپ بالکل ٹھیک ہیں لیکن آپ کا شوہر ہی آپ کے ساتھ وفادار نہیں تھا۔ کیا ابھی بھی آپ اس آدمی کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں؟ یہ کہہ کر کمرے سے وہ باہر چلا گیا تھا۔ میں اس کی اچھائی سے بہت متاثر ہو گئی تھی جس کی وجہ سے مجھے اس سے محبت ہو گئی اور اب میرے پاس کوئی دوسرا چارہ بھی نہیں تھا، اس لیے میں نے یہی فیصلہ کر لیا اور جس وجہ سے میں بھی وقاص سے پیار کرنے لگی تھی، اب میں اس کے ساتھ رہنے لگی تھی۔ ایسے انسان کے ساتھ رہنے کا کیا فائدہ جس کے ساتھ زبردستی کی جائے جو آپ کے ساتھ رہنا نہیں چاہتا ہو۔ اللہ حافظ۔ ختم شد۔